are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is the Northern Plains. The Northern Plains are located towards the south of the Himalayas. These plains are 2,400 kilometers long and 150 to 300 kilometer wide. This region covers the major part of northern India. It is a large flat area which extends from Punjab in the west to Assam in the east. It includes the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, part of Uttarakhand, Bihar, West Bengal and Assam. The soil of the land in the northern plains is very fertile. The Great Northern Plains. तो बच्चों, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हिमालयाज़ की साउथ साइड में लोकेटेड हैं. अगर हम बात करें उनके डिस्टेंस की तो वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग हैं एंड 150 टू 300 किलोमीटर वाइड हैं. उनका एरिया पंजाब से लेके आसाम तक एक्सटेंड होता है. उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम का एरिया भी कवर होता है. यहाँ का सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फ्लैट लेवल लैंड्स. मैनी रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिमालयाज फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. सम ऑफ देम लाइक गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी and Brahmaputra rise from the Himalayan mountains, while others like Chambal, Betwa, Son and others rise from the hills which are to the south of the northern plains. तो बच्चों, जो northern plains हैं वो flat level lands होते हैं. यहाँ पे हमें बहुत सारे rivers देखने को मिलते हैं जो हिमालय से originate करते हैं, जैसे कि गंगा या यमुना. These rivers bring numerous pieces of rocks and sand within them. These are spread over the land, especially during the floods. The fine silt brought and spread by rivers is called alluvium. The alluvial soil very fertile. Besides alluvial soil, the plains have plenty of rainfall. The rich soil and abundant water have made the northern plains very fertile. The northern plains of India are divided into the tributaries basins by Satluj, Ganga and Brahmaputra rivers. तो बच्चों, जो यहाँ के रिवर्स हैं हमें उनमें बहुत सारे रॉक्स और सैंड देखने को मिलती है. यहाँ का सॉइल, जिसे हम एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है. और नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 पार्ट्स में यानी बेसिन्स में डिवाइड किया है: सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स. नॉलेज बियॉन्ड. अ बेसिन इज द टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो बच्चों, एक बेसिन वो एरिया होता है जो रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज के लिए ड्रेन किया जाता है. द 3 बेसिन्स आर द सतलुज बेसिन इन द वेस्ट, the Ganga basin in the center and the Brahmaputra basin in the east. तो बच्चों, जो 3 basins हैं वो है सतलुज in the west, Ganga in the center and Brahmaputra in the east. The Satluj basin. These plains cover Punjab and parts of Himachal Pradesh, Haryana and Rajasthan. The river Satluj, along with its main tributary, the Bias, flows towards the southwest to join the Indus River in Pakistan. The entire river basin is very fertile for crop cultivation. Wheat, rice, cotton and sugarcane are the main crops grown here. The Bhakra Dam has been built across the river Satluj to irrigate lands and to produce electricity. तो बच्चों, जो सतलुज बेसिन है वो पार्ट्स ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान को कवर करता है. रिवर सतलुज अपनी मेन ट्रिब्यूटरी बियास के साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है. यहाँ का रिवर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ का सॉइल क्रॉप कल्टीवेशन के लिए
बहुत ही अच्छा है। वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन जैसे क्रॉप्स यहाँ उगाए जाते हैं। द गंगा बेसिन। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर of the Hindus. It rises from the Gangotri glacier in the Himalayas and flows very swiftly down the mountains, joining with the Bhagirathi, the Alaknanda and the Mandakini. It enters into the plains at Haridwar in Uttarakhand. As it flows down the plains, it is joined by its tributaries. A small river or stream flows into a bigger one. The Yamuna is the most important tributary of the Ganga. It joins it at Allahabad in Uttar Pradesh. This confluence point is called Sangam, where once in every 12 years, thousands of pilgrims gather to celebrate the Kumbh Mela. तो बच्चों, जो गंगा रिवर है वो हिंदूज का सेक्रेड रिवर है। वो गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होके हरिद्वार तक बहता जाता है। यमुना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। वो इलाहाबाद पे उससे ज्वाइन करती है। उस पॉइंट को हम संगम बोलते हैं। मैनी हिमालयन रिवर्स सच एज द गंडक, गोमती, घाघरा एंड कोसी join Ganga on its journey towards the east. The Chambal, Sindh, Betwa and Son rivers join the Ganga from its southern side. तो बच्चों, जो हिमालयन रिवर्स हैं जैसे कि गोमती या गंडक, गंगा को ईस्ट साइड से ज्वाइन करते हैं और चंबल और बेटवा जैसे रिवर्स गंगा को सर्दर्न साइड से ज्वाइन करते हैं। द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, Bihar and West Bengal. On reaching West Bengal, it splits into two branches, distributaries, the Hooghly and the Padma. तो बच्चों, जो गंगा है वो फ्लो करती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल से। एंड जब वो वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है तो उसका फर्दर दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है, द हुगली एंड द पद्मा में। हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता and Padma flows through West Bengal to Bangladesh. They form the largest delta of the world called the Sundarbans Delta. A delta is an area of land at a river's mouth which is triangular in shape. Here, the river splits up into many small rivers before entering the sea. हर की पौड़ी हरिद्वार। तो बच्चों, यदि हम बात करें हुगली एंड पद्मा की, तो हुगली कोलकाता की तरफ फ्लो करता है एंड पद्मा वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश। वहाँ पे वो एक डेल्टा फॉर्म करते हैं जिसे हम सुंदरबंस डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा एक ऐसा एरिया ऑफ लैंड होता है जहाँ पे रिवर का माउथ ट्रायंगुलर शेप में होता है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स एंड रन्स अ लॉन्ग कोर्स इन तिब्बत where it is called Sangpo before it enters the Assam Valley. The Ganga and the Brahmaputra rivers together form the largest delta in the world. This area is known as Sundarbans. These rivers flow through a very fertile part of India. A number of cities have grown along the banks of the Ganga river. Sundarban Delta. तो बच्चों, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ओरिजिनेट करता है तिब्बत से। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर साथ में मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करते हैं जिसे हम सुंदरबंस बोलते हैं। यहाँ का बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है और यहाँ का सॉइल भी बहुत फर्टाइल होता है। बहुत सारी सिटीज़ गंगा के आसपास आपको देखने को मिलती हैं। गोइंग अराउंड अस, गंगा एक्शन प्लान। The Ganga is a holy river but most polluted. Our government has been making plans to clean the river so that we can get safe and clean water. This project is called Ganga Action Plan. बच्चों, गंगा एक होली रिवर है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं जिससे वो गंगा को साफ करेंगे एंड उसके पानी को सेफ एंड क्लीन बनाएंगे। उसे हम गंगा एक्शन प्लान बोलते हैं। Life of the people. Delhi.
National Capital Territory of Delhi or New Delhi is the capital of India. It is the seat of administration of Union government. It has many famous monuments such as Red Fort, Qutub Minar, Jama Masjid, Lotus Temple, India Gate, Akshardham Temple, Gurdwara Sisganj, War Memorial and Jantar Mantar. All major Indian festivals are celebrated here. India Gate, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल। तो बच्चों दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। यहाँ पे बहुत सारे सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि रेड फोर्ट, अक्षरधाम टेम्पल, इंडिया गेट या फिर जामा मस्जिद, और यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इट्स कैपिटल इज़ लखनऊ। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ यूपी आर मेरठ, Agra, Kanpur, Allahabad and Varanasi. The main crops grown here are wheat, rice, sugarcane, pulses and oilseed. People speak Hindi and Urdu. Holi, Dashehra, Diwali, Eid, Muharram and Christmas are the major festivals celebrated here. Taj Mahal at Agra. तो बच्चों उत्तर प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। इसका कैपिटल है लखनऊ। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे कि आगरा एंड मेरठ। यहाँ के लोग वीट, राइस एंड शुगर केन को मेनली ग्रो करते हैं। वो हिंदी एंड उर्दू में बात करते हैं। यहाँ पे होली, दशहरा, दिवाली, मुहर्रम एंड क्रिसमस मनाया जाता है। बिहार। बिहार इज़ द लैंड ऑफ टू ग्रेट मैन, महात्मा बुद्धा and Lord Mahavira. Both Gaya and Nalanda are the places associated with them. Patna is the capital city of Bihar. Rice is the major crop of Bihar. Wheat, sugarcane and jute are also grown. People speak widely Hindi and Urdu. The major festivals celebrated are Diwali, Dashehra, Chhath, Eid and Durga Puja. तो बच्चों बिहार जो है वो दो बहुत ही महान इंसानों का लैंड है, महात्मा बुद्धा एंड लॉर्ड महावीर। यहाँ का कैपिटल पटना है। यहाँ के लोग ज़्यादातर राइस को ग्रो करते हैं। वो उसके साथ वीट, शुगर केन एंड जूट भी ग्रो करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं और यहाँ पे छठ, दुर्गा पूजा, दिवाली एंड दशहरा जैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ नोन फॉर द फर्टाइल प्लेन्स मेड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. Rice and jute are the main crops grown here. Jute is used to make ropes, bags and carpets. Kolkata is the capital of West Bengal. The people of the state speak Bangla. They are fond of painting, music, dance and literature. Durga Puja is the most popular festival celebrated by the people. तो बच्चों वेस्ट बंगाल अपने फर्टाइल प्लेन्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे राइस एंड जूट मेनली ग्रो किया जाता है। यहाँ के लोग बांग्ला में बात करते हैं और यहाँ के लोगों को पेंटिंग, म्यूज़िक एंड डांस का बहुत शौक होता है। यहाँ के मेन फेस्टिवल्स में दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। पंजाब। द मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पंजाब आर सतलुज, ब्यास एंड रवि. They provide water to irrigate the farmlands. Wheat, rice and sugarcane are the main crops. Chandigarh is the capital of Punjab. It is a planned city. Amritsar is a big city. It is famous for the Golden Temple. Other big cities are Jalandhar, Ludhiana and Patiala. People speak Punjabi and Hindi. The major festivals celebrated here are Guru Purabs, बैसाखी, होली एंड दिवाली. गोल्डन टेम्पल अमृतसर. तो बच्चों पंजाब से जो रिवर्स मेनली फ्लो होते हैं वो हैं सतलुज, ब्यास एंड रवि. वीट, राइस एंड शुगर केन यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं. पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है. यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं अमृतसर, जलंधर,
लुधियाना एंड पटियाला। यहाँ के लोग पंजाबी एंड हिंदी में बात करते हैं और यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं गुरुपुरब्स, बैसाखी, दिवाली एंड होली। हरियाणा। हरियाणा is the neighboring state of Punjab. Chandigarh is the capital city of Haryana. The Yamuna and the Satluj provide water for irrigation. Wheat, rice and sugarcane are the main crops. Farmers use tractors, tube wells and water pumps. Many people are engaged in cattle rearing and dairy farming. Hindi and Haryanvi are the main languages spoken in the state. तो बच्चों, हरियाणा पंजाब का नेबरिंग स्टेट है। इसका कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ पे यमुना एंड सतलुज से पानी मिलता है इरिगेशन के लिए। यहाँ के मेन क्रॉप्स व्हीट, राइस एंड शुगर केन हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर कैटल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग में एंगेज्ड हैं और यहाँ के लोग हिंदी एंड हरियाणवी लैंग्वेज में बात करते हैं। Why are the northern plains important? The northern plains have most populous states in its fertile soil which is very rich in mineral salts. Major food crops of India are grown here. The important industries like coal, jute and cement are scattered over the whole region. All these reasons make the northern plains very important for India. There are many factories in these cities. The waste from the factories and houses goes into rivers and makes the water dirty. This practice must be stopped to keep our rivers free from pollution. तो बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि यहाँ का सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है और यहाँ पे मेनली सारे फूड क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि कोल, जूट एंड सीमेंट की इंडस्ट्रीज़। इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। फैक्ट्रीज़ का वेस्ट पानी में जाके उसे पल्यूट कर देता है, पर हमें इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए और पल्यूशन को रोकने में मदद करनी चाहिए। थिंक एंड आंसर। बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।